Morning, students. Very good Good morning, morning, all. sir. Today, we are going to discuss about stress. What do you mean by stress? And what are the types of stress? So, we will discuss about the stress topic. What is stress? And what are the types of stress? And what will be the outline of this lecture? First, we will define what is stress, the definition of stress. Then, what are the types of stress? What are the symptoms of stress? And types of stressors? How many types of stressors are there? And finally, what are the responses to stress? Or in another word, we can say the reactions to the stress. How a person reacts to the stress. So these will be the today's discussion. These topics will be discussed in this class. So first, we need to understand what do we mean by stress. Stress क्या होता है? How we can explain stress. So, what is stress? Stress basically is the reactions of the people. Stress is the reaction of the people when they are when they feel some kind of pressure and they are not able to cope with that pressure. Then they will feel stress. Whenever you are taking some kind of pressure and you are not able to deal with that pressure, then you will feel stress. In simple words, we can say that the stress is a reaction of people when they are having excessive pressure or when they are having demands by the external world. When they fail to cope with those demands, then they feel some kind of stress. Every day we are having many demands, whether it is personal, professional, or familial, or daily routine demands. If we are coping with day-to-day demands of life, then we do not feel stress. We are having coping mechanism also. We are coping day-to-day life demands. Then it is not stress. When we are fail to deal with it, जब हम उस पर्टिकुलर डिमांड से डील करने में फेल हो जाते हैं, तब हमें स्ट्रेस का अनुभव होता है. ओके, तो स्ट्रेस को सिंपल हम समझ सकते हैं कि एक्सेसिव प्रेशर. हमारे सामने बहुत सारी डिमांड्स आती हैं और उन डिमांड्स को हम सही से कोप नहीं कर पाते या उन डिमांड्स का रिएक्शन नहीं कर पाते, तो तभी हमें स्ट्रेस फील होता है. ओके, तो
स्ट्रेस को सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है आपके ऊपर एक ओवर बर्डन है, एक बर्डन है, जिस बर्डन को आप कोप करने में फेल हो जाते हैं तभी आपको स्ट्रेस फील होता है। देन what is the definition of stress? In this slide, you can see the stress occurs when the pressure is greater than the resource. Stress always occurs when you feel the pressure and that pressure is greater than your resource. What does resource means here? Resource means you are having some strategy, some technique, some reaction. Then this is the real definition of stress. You are having less resource to cope with that demand. Okay. So in simple, stress is always occur when there is a pressure. That pressure is greater than the demands. That pressure is greater than the resource of the individuals. Okay. So this is the definition of stress in true sense. Then come to the types of stress. How many types or what types are the types of stress? Stress can be positive, stress can be negative. Stress can be positive, stress can be negative. What is the negative stress? Negative stress always have harmful effect on mental, physical and spiritual health of the individual. Yes, negative stress means person feeling harmful effect on his or her mental, physical and spiritual well-being or health. It means negative stress includes the negative outcomes, which is harmful to the individual, which is always harmful to the individuals. Negative stress also called distress. Negative stress also called sometimes distress. Person is in distress. Person feeling harmful. Whatever demands you are getting in your day-to-day life, then that demands, that stress create a negative impact on the individual. That demands or that stress is creating negative impact on the individual. So that is why it is negative stress. What about positive stress? Positive stress means it have a positive impact on the individual. It has the positive outcomes. Sometimes it also called the eustress. Eustress. What does that mean? It means the outcome of that stress is always positive. Whenever you are having a situation like an interview for a particular job, you are having extra demand on you and you are dealing with that demand, and that demands have a positive impact on you because that is job which you want.
जो आप जॉब चाहते हैं और वो जॉब आपको मिल जाती है, तो उस जॉब की प्रिपरेशन में आपने जो टाइम लिया, आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन हुआ, आपने उस जॉब के लिए प्रिपेयर किया, इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, तो दैट burden or that extra demands is called positive stress. Okay, so we should understand the what is negative stress and what is positive stress. Both are having different outcomes. Okay, so in this way we can say the stress can be negative or stress can be positive. Okay, there is another criteria of types of stress. We can divide stress in different types. Stress can be acute, stress can be severe, or stress can be mild. Sometimes you can feel the acute stress, mild stress, severe stress. Severe stress is the highest stress, or you can say जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एक स्ट्रेस की लिमिट आपको एक्सेस हो जाती है, तो उसमें आपको सीवियर स्ट्रेस फील होता है. ठीक है, so this is the different categorization of stress. Now come to the type symptoms of stress. What are the symptoms of stress? Stress can be felt by the individuals at physical, mental, behavioral, and emotional level. So accordingly, stress can be stress have and symptoms of physical, mental, behavioral, and emotional. Okay, what will be the behavioral symptoms? In behavioral, in physical symptoms, first we will define physical symptoms. Physical symptoms, persons feel fatigue, headache, infection, indigestion, breathlessness, sweating, and trembling, fainting. These are the physical symptoms of stress. Whenever you are feeling stress or distress, then you can observe the physical symptoms related to sweating, fatigue, sleep pattern change, headache, and so on. So physical symptoms can be observed when a person feels stress. Okay. So what about mental symptoms? Stress has mental symptoms like lack of concentration, memory lapses, difficulty in making decisions, confusion, disorientation, or panic attacks. In mental symptoms, you will observe that when you are in stress, you are not taking any decisions properly. It means you are in difficult situation. What I should do and what I should not do. What I am to do, what I am not to do. मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. You are feeling like in that situation. So mental symptoms are also observed in stress. What about behavioral symptoms? You can also observe the behavioral symptoms like appetite change. Because of stress, person is feeling appetite change. Sometimes he eats too much or too little. कभी कभी वो बहुत ज्यादा खाना खाता है स्ट्रेस की वजह से, या खाना ही कम कर देता है या खाना ही नहीं खाता.
दैट इज बिहेवियरल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं होता कि कितना खाना खा लिया। और कुछ लोग होते हैं कि जब स्ट्रेस में होते हैं तो उनको भूख ही नहीं लगती, मुझे भूख नहीं है। समटाइम यू कैन ऑब्जर्व दैट। तो जब भी बिहेवियरल सिम्टम की बात आती है तो यू विल ऑब्जर्व द एपेटाइट चेंज, too much or too little. Okay. Then eating disorders based on appetite. Eating disorders can be occur or can happen. हम उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया और बुलिमिया। या तो आप ज्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, वो दोनों सिम्टम्स, वो दोनों डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। Sometimes people increase intake of alcohol and other drugs. आप देखते हैं कि कुछ लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो दे प्रेफर ड्रिंकिंग अल्कोहल, कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं अपने स्ट्रेस को रिलीव करना चाहता हूँ। दे विल प्रेफर इंक्रीज इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स। आपने देखा होगा कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं या कुछ और ड्रग्स लेते हैं। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जब भी जो स्मोकर्स होते हैं ना, स्मोकर्स को आप ऑब्जर्व करना, किसी भी स्मोकर्स को ऑब्जर्व करना, जब उनको स्ट्रेस होता है, जब वो स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो वो हमेशा आपको स्मोकिंग का उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट मिलेगा। फ्रीक्वेंट स्मोक करते हैं वो, फ्रीक्वेंट, और उनकी एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है स्मोकिंग बिहेवियर में। नॉर्मल स्मोक करते हैं आप, बट वो फ्रीक्वेंट ऐसे करेंगे, इट मीन्स दे आर फीलिंग स्ट्रेस and they are releasing that stress through smoking. Okay, so increased smoking you can see in behavioral symptoms. Nail biting is also one of the symptoms of stress. कुछ लोग देखा होगा, अक्सर आप लोग देखते हैं बैठे बैठे नेल बाइटिंग करते रहते हैं, ठीक है। नेल बाइटिंग करना अच्छी हैबिट नहीं होती बच्चों। तो जो एक्सेसिव नेल बाइटिंग करता है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, सारा दिन लगा रहता है अपने नाखूनों को। हमारे पास नेल कटर नहीं है, बट दे आर हैविंग मैनुअल नेल कटर, अपना नेल बाइटिंग करते हैं। हाइपोकोंड्रिया, हाइपोकोंड्रिया भी देखा जाता है बिहेवियरल सिम्टम्स में। ये क्या होता है हाइपोकोंड्रिया? हाइपोकोंड्रिया को हिंदी में बोलते हैं रोग भ्रम। व्यक्ति को लगता है मुझे कोई डिजीज हो गई है, मुझे कोई रोग हो गया है, जबकि उसको कोई रोग नहीं होता, कोई डिजीज नहीं होती, बट पर्सन इज फीलिंग दैट कि मुझे कुछ बीमारी हो गई है, ठीक है। दैट इज हाइपोकोंड्रिया। So behavioral symptoms include all these type of symptoms. Then emotional symptoms also observed during stress. What are those? You can have a significant emotional change when person is feeling stress, like impatience, fits, tearfulness, deterioration of personal hygiene and appearance. अब इसमें एक चीज सिग्निफिकेंट मुझे लगती है, जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं या स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, तो अक्सर क्या होता है, हम अपना आपका जो देखभाल है, लास्ट वाला पॉइंट, हम अपने आप का जो केयरिंग है, अपने आप को जो मेंटेन रखने की वाली वो जो हमारी हैबिट है,
वो नहीं हो पाती। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा रख रखाव है वो नहीं प्रॉपर कर पाते। हमारी जो पर्सनल हाइजीन है और हमारा जो पर्सनल अपीयरेंस है उसमें सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें दूर से पता चल जाता है यस ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि वो पहले जैसे दिख रहा था, पहले उसका अपीयरेंस था, पहले जैसे वो अपने आप को मेंटेन रख रहा था, नाउ ही इज नॉट डूइंग। इट मीन्स ही है और शी हैज सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें इमोशनल सिम्टम्स भी देखने को मिलता है जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ओके, देन वी विल डिस्कस what are the types of stressors. Types of stressors. How many types of stressors and what are the types of stressors? कितने तरह के स्ट्रेसर हो सकते हैं? हमारे सामने बेसिकली दो तरह के स्ट्रेसर। स्ट्रेसर्स का मतलब यहाँ स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेसर्स का मतलब है जो हमारे ऊपर जो बर्डन डालते हैं, जो हमारे ऊपर जो डिमांड्स डालते हैं, एक्स्ट्रा डिमांड्स जो डालते हैं, वो स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स can be external, stressors can be internal. We are not talking about types of stress, rather we are talking about types of stressors. कितने तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं? पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था कि स्ट्रेस के कितने टाइप हैं, स्ट्रेसर्स के टाइप नहीं किए थे हम, स्ट्रेस के। ओके, तो एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स are in many categories. Physical environment is also external stressor for the individual. Social interaction is also a stressor for the individual that creates stress to the individual. Sometimes because of social interaction, person feels stress कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मोनिका ने मुझे ऐसा बोल दिया, मीनू ने ऐसा बोल दिया, हिम्मत ने ऐसा बोल दिया, उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो गया। हिम्मत और मोनिका और मीनू, what are they? They are the stressor for me. They create stressor, they create stress. ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल है। सोशल इंटरेक्शन, हमारी किसी बात पे झगड़ा हो गया, हमारी किसी बात में मिसमैचिंग होगी, उस मिसमैचिंग की वजह से वो उस सोशल इंटरेक्शन की वजह से मुझे स्ट्रेस हो गया, जबकि सोशल इंटरेक्शन इज एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशनल, मेजर लाइफ इवेंट, डेली हैजल्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात डेली हैजल्स की बात करूंगा यहाँ पे। डेली हैजल्स हमारे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल स्ट्रेसर है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रेसर है। कैसे? जैसे ही हम घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, हमें ऑफिस में 9 बजे पहुंचना है या 10 बजे पहुंचना है, हम अपने घर से 8:30 बजे निकलते हैं, तो हमारा जो घर से और ऑफिस का डिस्टेंस हाफ एन आवर का है, आधे घंटे का है। अब हमें रूटीन में वो हम आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाते हैं, 8:30 बजे चले, 9 बजे ऑफिस में पहुंचे। बट समटाइम्स क्या होता है, जैम की वजह से, ट्रैफिक जैम की वजह से हम ऑफिस में पहुंचने से डिले हो जाते हैं। 8:30 बजे चलते हैं तो हम ऑफिस में 9:30 तक पहुंचते हैं, आधे घंटे का ट्रैफिक जैम लग जाता है। अब ट्रैफिक जैम जो क्या था, वो डेली हैजल्स है। डेली डे टू डे रूटीन में ट्रैफिक चलता रहता है, कभी और ट्रैफिक हो गया, कभी कम हो गया। बिकॉज ऑफ डेली हैजल्स हम ऑफिस में लेट पहुंच गए। ऑफिस में लेट पहुंचना से हमें क्या होगा, स्ट्रेस होगा। वी आर फीलिंग स्ट्रेस कि हम उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, उसकी वजह से डेली हैजल्स की वजह से हमें
स्ट्रेस हो गया। डेली हेजल्स कैन बी मैनी टाइप्स। आप देखोगे डे टू डे लाइफ में आप बहुत तरह के डेली हेजल्स होते हैं। आपको लगता है पानी नहीं आ रहा घर में, शावर लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, पानी आ ही नहीं रहा, आप कैसे शावर लेंगे, ठीक है। या कोई और भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, ठीक है, आपके गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत तरह की डेली प्रॉब्लम हो सकती है, डेली हेजल्स हो सकती है। तो इन डेली हेजल्स की वजह से ही हमें ये डेली हेजल्स हमारे लिए एक स्ट्रेसर का काम कर रही है, और उस स्ट्रेसर से हमें स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस से फिर हमारे अंदर बिहेवियरल, इमोशनल और मेंटल जो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो डेली हेजल्स कैन बी द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और इट कैन बी द इम्पोर्टेंट स्ट्रेसर। So we cannot deny its contribution in person's life. हमें पता है डेली हेजल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी वजह से व्यक्ति को स्ट्रेस हो जाता है, और डेली हेजल जबकि हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। देन इंटरनल स्ट्रेसर्स की बात करें तो इंटरनल स्ट्रेसर्स कैन बी रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, नेगेटिव सेल्फ टॉक, माइंड ट्रैप, पर्सनैलिटी ट्रेट। इंटरनल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। इंटरनल मीन्स इट इज thoroughly related to the individual only. Internal means it is completely related to the individual as such. इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर का रोल नहीं होता। हमारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, हमारे जो माइंड मेंटल प्रोसेस हैं, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी चॉइसेस है, हमारी हैबिट्स है, दैट इज इंटरनल। वो हमने बनाई है, हमारी अपनी है, इंडिविजुअल्स की स्पेसिफिक है, पर्सनल है। तो बिकॉज ऑफ इंटरनल stressor, we can sometimes observe stress. Okay, so internal stresses भी की वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है या स्ट्रेस हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, देन कम टू द रिस्पॉन्स। जब आपको स्ट्रेस का पता चल गया, हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर। उसके बाद में जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलता है स्ट्रेस में। आप देखोगे जब भी स्ट्रेस होता है तो आपको सबसे एक हमारे चीज, एक कंसेप्ट है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। जब भी आपके सामने आता है कोई भी स्ट्रेस, कोई परिस्थिति, आप या तो उससे लड़ते हैं या आप उससे भाग जाते हैं। फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, या तो फ्लाई कर दिया आपने या आपने फाइट कर दिया, ठीक है। तो फाइट या तो आप उससे लड़ लेते हैं या आप उसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी आप रिएक्ट करते हैं, दो तरह के रिएक्शन कर सकते हैं। बट ये जो रिएक्शन हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ बॉडली रिएक्शन, तो मैंने पर्टिकुलर बताया आपको यहाँ पे कि क्या क्या बॉडली रिएक्शंस होते हैं। आप देखोगे मसल टेंस हो जाती हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं। रैपिड ब्रीदिंग आप ऑब्जर्व करेंगे। इंक्रीज मेंटल अलर्टनेस, बार बार आप ऐसे से अलर्ट रहेंगे मेंटली। अब मेंटल अलर्टनेस का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप जब भी किसी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, मीटिंग्स और इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं, आपका इंटरव्यू 10 o'clock टाइम में मेंशन है, यू विल रीच बिफोर 10। तो आप 10 बजे रेडी हो जाते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, बट आपका जो टाइम, आपका जो टर्न है वो 12 बजे आती है। आपके सामने 12 बजे टाइम का जो टाइम है वो आता है। तो आप 12 बजे 10 बजे रेडी हो गए, लेकिन 2 घंटे आपसे वेट नहीं हो रहा कि मेरा इंटरव्यू है, मेरा 10 बजे इंटरव्यू था, आई हैव टू
present myself before the interviewer. होता क्या है, तो आप मेंटली अलर्ट हो जाते हैं, बार बार आप टाइम देखते हैं, बार बार आप गेट की तरफ देखते हैं, बार बार इधर उधर मूव करते हैं, तो यू विल फील मेंटल अलर्टनेस, कि आप इंटरनली इतने अलर्ट हो जाते हैं कि मेरा टर्न कब आएगा, जबकि आपका टर्न कितने बजे है, 10 o'clock. So because of stress, mental alertness also observed. Then your respiration system, increase heart rate and blood pressure. Okay, so these are the responses to this stress. Okay, these are the responses to this stress by the individual. This is all about the today's lecture. So we have discussed what is stress, what are the types of stress, what are the types of stressors, and what are the symptoms of stress, and finally what are the reactions to the stress. So we have learned about the stress topic.